Good morning, students. Today I will discuss about the coordination formula. As we have earlier discussed the IUPAC name of the coordination compound. From the IUPAC name, we make chemical formula. This is the IUPAC name and it is converted into chemical formula. First, tetrahydroxo zincate 2. So we start first write the central metal atom, that is zinc, Zn. Zincate 8 means negative charge, 2 negative charges here, 2 is the oxidation state. Tetrahydroxo, hydroxo means OH और कितने टाइम्स है, टेट्रा मीन्स 4 टाइम्स. तो Zn ब्रैकेट OH क्या है, लिगेंड्स है और दिस इज 4 टाइम्स एंड 2 माइनस चार्ज. नेक्स्ट इज potassium tetracyanonickelate. In this case, first write potassium K. अब nickelate having suppose 2 minus charge here. So this is cross means this is positive species, this is negative. तो ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, पोटाशियम के पास. तो K2 हो जाएगा ये और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. टेट्रासाइनोनिकलेट, टेट्रा मीन्स 4, 4, साइनो ग्रुप मीन्स Cn प्रेजेंट है, निकलेट निकल मेटल इज प्रेजेंट. नाउ नेक्स्ट इज पेंटाअमीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3. In this case, 2 ligands are present. One is amine, second is nitrato O. O means ये O linkage से जुड़ा हुआ है. This is NO2, but it is linked with oxygen. So ONO and pentaamine that is NH3 का 5 times. कोबाल्ट है और 3 प्लस में, क्योंकि इसमें 8 नहीं है इस वजह से इसमें क्या है, प्लस स्पीसीज है, तो हेयर 2 प्लस चार्जेस देयर. हेक्साअमीन प्लैटिनम 4. हेक्साअमीन मीन्स NH3 का 6 टाइम्स, प्लैटिनम PT और कितना चार्ज है, +4, तो हेयर +4 चार्जेस प्रेजेंट. हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन. हेक्सा 6 टाइम्स, एक्वा मीन्स वाटर 6 टाइम्स, टाइटेनियम 3 आयन मीन्स यहाँ पे +3 चार्ज है. टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन. टेट्रा 4 chlorine Cl, because chlorine is a single atom na, single ligand, so there is no use of brackets because it is made up of only one kind of atom, इसलिए यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं किया. दैट इज निकलेट, निकलेट मीन्स निकल है, बट इस पे क्या है, 8 मीन्स 2 नेगेटिव, 2 चार्ज है और 8 मीन्स नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट हियर. नेक्स्ट इज टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 चार्ज. टेट्रा 4, this is carbonyl group CO. Here carbon and oxygen there are 2 atoms, so this ligand is called as carbonyl and bracket is here because it is made up of 2 atoms, so it is enclosed in a bracket. Nickel or charge is neutral means there is 0 charge. So by the help of IUPAC name we can easily convert into the chemical formula, and by the help of chemical formula we can easily write the IUPAC name. Students, please do practice. This is very important questions for your exam. Now the next topic is bonding in coordination compound. This can be explained by the valence bond theory. According to valence bond theory, the main postulates are the number of metal ligands
this is metal ligands coordinate bonds that depends on the number of vacant orbitals for bonding present in the metal ions, and the metal ligands that will form a coordinate bond. मीन्स जितना भी मेटल लिगेंड्स बॉन्ड का नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है कि मेटल आयन के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, उसी के हिसाब से क्या है हम मेटल लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेटल एटम यूजेस n-1d, दिस इज द इनर ऑर्बिटल, ns, np or ns, np, nd. These n are the number of shell, जैसे 3s, 3p, 3d इस तरीके से. These orbitals are used for hybridization. Here we check the table. This is the coordination number, this is hybridization, and this is the shape of coordination compound. If the coordination number is 4, then hybridization is sp3, then its shape is tetrahedral. If the coordination number is 4 but the hybridization is dsp2, shape is square planar. If the coordination number is 6, then hybridization is sp3d2, shape is octahedral. If the coordination number is 6, then hybridization is d2sp3 and shape is again octahedral. Here hybridization is changed but shape remain same. Point number 3, empty hybrid orbitals of central metal that is overlap with the filled orbital of ligands and to form a metal ligand bond. मतलब सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए, खाली, और लिगेंड का ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए, और जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को देगा तो इट विल फॉर्म अ मेटल लिगेंड बॉन्ड. पॉइंट नंबर 4, inner orbital, this is called as low spin, or outer orbitals, this is called as high spin complex that are formed. Means in this two type of complex are formed. First is inner orbital complex, second is outer orbital complex. If this complex is diamagnetic, then it means diamagnetic means all the electrons are paired up. And if the complex is paramagnetic, it means it has unpaired electrons. So these are the postulates of VBT theory. Now the next is spectrochemical series. This is a very short note. The arrangement of ligands in series in the increasing order of field strength. This is called as spectrochemical series. This is the series. Here I negative, Br negative, SCN negative, Cl negative, S2 negative. This is sulfide. F negative, OH negative, C2O4. 2 negative, this is oxalate, H2O, water, NCS negative, EDTA, ethylene, diamine, tetra, acetate ion, having a 4 negative charge, NH3, this is amine, EN, ethylene, diamine, Cn negative, or CO. CO is carbonyl group. In this series, the ligands above the NH3
they are called as strong filled ligands. Strong means pair up, means they are pair up, मीन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। और अगर वो पेयर अप हो गए तो उसकी स्पिन कैसी हो जाएगी, लो। स्ट्रॉन्ग है तो पेयर अप होंगे, पेयर अप है तो उसकी स्पिन कैसी हो जाएगी, लो स्पिन। सो दीज ऑर्बिटल in which the ligands donate their lone pair of electrons, so they are involved in hybridization. केवल वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो लिगेंड लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। बट आफ्टर what these ligands are weak filled ligands. Weak filled means they are not paired up. ये सिंगल होता है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सिंगली फिल्ड होता है, ये पेयर अप नहीं होते। और इसकी वजह से इसकी स्पिन कैसी होती है, हाई, क्योंकि सिंगल है, अकेला है इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से घूम सकता है, इसलिए वो हाई स्पिन में प्रेजेंट होता है। मीन्स वीक फील्ड लिगेंड्स आर नॉट पेयर अप and it has unpaired electron, so its spin is very high. So there are two types of ligands, weak filled ligands and strong filled ligands. How this series we can learn with the help of tricks. देखो, I negative is Br negative bar, SCN सचिन, Cl class, सल्फाइड से, F negative फिर, OH OTH, ऑक्सलेट के, वाटर पानी, निकाल NCS, EDTA देता, NH3 नहीं, इन CN सेन और CO को। इस बार सचिन क्लास से फिर OTH के पानी निकाल देता, नहीं इंसान को। So this is the simple trick. By the help of this trick we can easily learn the spectrochemical series. Beta, this series is very important for your exam to find out the hybridization, low hand high spin complex, magnetic nature and its shape. Here we take the example. Beta, this is the example. Fe bracket Cn 6 4 negative. Here cyanide ion is present, that is 6 and having a 4 negative charge. First of all we have to calculate the oxidation state on the iron atom. So this is supposed to be X, cyanide having -1 charge, so there is 6 cyanide ion is present, so -6 that is equal to -4. X is equal to -4 plus 6, that is X is equal to 2, means iron having +2 charge. Iron atomic number 26, its configuration is 3d6 4s2. But iron having +2 charge, so 2 electrons are removed from the valence electrons. इस शेल से 4s आउटर शेल से क्या होगा, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे जो लास्ट वाली सेल में है, तो हमारे पास बचे 3d6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 3d6। 3d के लिए हम 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। हंस रूल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल्ड करो, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। अब हमने ये बनाया 3D। अब हम ये देखेंगे, ये बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे लिगेंड्स कौन सा है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अब CN है, CN स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सेकेंड नंबर पे है CN, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, इट मीन्स पेयर अप होगा और लॉ स्पिन बनाएगा। अब आपने ये बनाया 3D वापस से। अब इसमें आप लोग क्या करना है, पेयर अप करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले के पास, तो ये यहाँ चला गया। लास्ट सेकेंड कहाँ जाएगा, थर्ड वाले के पास, थर्ड चला गया। अब ये 2 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए हैं। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, 4s, 4s भी वैकेंट है और 4p भी वैकेंट है। तो अब हमें इतने सारे क्यों लेने हैं, क्योंकि हमारे पास 6 साइनाइड आयन है। तो ये लिगेंड्स है, 6 लिगेंड जो साइनाइड है, 1 CN, 2 CN, 3, 4, 5, 6, ये साइनाइड आयन आपके यहाँ आ जाएंगे और ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2, यहाँ पे 2 हैं, D2sp3, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो बेटा लो स्पिन बनेगा, और लो स्पिन है तो ये पेयर अप भी हो गए हैं हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रही है और ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप बनेगी। हम टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 6 लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप बनेगी। और ये कौन सा है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, पेयर अप हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। So with the help of this spectrochemical series we can easily find out the strong field ligands or low spin, or weak field ligands or high spin. So next we take another example. Next is FeH2O6 3+ charge. Here water is neutral beta. First of all we calculate the oxidation state of iron. तो दिस इज़ न्यूट्रल, दिस इज़ हैविंग 0 चार्ज, तो 0 × 6 दैट इज इक्वल टू 0, तो x + 0 इज इक्वल टू +3, सो x इज इक्वल टू +3, इट मीन्स आयरन हैविंग +3 चार्ज। आयरन की सिंपल एटॉमिक नंबर क्या है, 26, ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 4s2। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा, तो 3d5 बचेगा हमारे पास। अब वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड्स, अब हमें पता लग गया है अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसकी स्पिन हाई होगी और ये पेयर अप नहीं होगा, मीन्स अनपेयर्ड रहेगा। तो अब इसको 5 को बनाओ, D5 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 2 3 4 5 सारे सिंगली फिल कर दिए। इसके बाद आपको कौन सा बनाना है, यही एज इट इज़ रखो, क्योंकि इसमें पेयरिंग अप नहीं होनी है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रहने हैं, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 3D के बाद, 3D के बाद आएगा 4s, 4s के बाद 4p, क्योंकि हमें 6 वाटर लिगेंड्स फिल करने हैं, और फिर 4D। तो हमारे पास 2 यहाँ पे मीन्स 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, 5 एंड 6, हम ऐसे फिल कर सकते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d2, इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो शेप रहेगी बेटा, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट्स शेप इज ऑक्टाहेड्रल। अब ये हाईली पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये हाईली पैरामैग्नेटिक है। अब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है बिकॉज ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं हो पाते, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ही रहता है हमारे पास, अनपेयर्ड रहता है, और अनपेयर्ड होने की वजह से वो क्या होता है, ईजिली से घूम सकता है, इसलिए उसकी जो स्पिन होती है दैट इज़ हाई स्पिन, दैट इज़ हाई स्पिन। सो विद द हेल्प ऑफ spectrochemical series, first of all we find out the strong and weak field ligands. According to this, अगर strong field है तो पेयर अप करना है, पेयर अप होगा तो लो स्पिन बनेगी, और अगर weak field ligand है तो हमें क्या करना है, weak field में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, पेयर अप नहीं होगा, इट मीन्स वो आसानी से वहाँ घूम सकता है, और इसको हम क्या बोलेंगे,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 आता है, सिंपल लिखी जाती है, s से स्टार्ट होती है, तो इट मीन्स वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और अगर d2 पहले आ जाता है, d2sp3, अगर ऐसे होता है जैसे पिछले केस में था, तो उसमें वो क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो प्लीज डू प्रैक्टिस of these VBT theory and take more and more example. Tomorrow I will discuss some more example of this chapter. Thank you students.